How many of you can testify and say, Jesus is more than enough today for me? हम में से कितने लोग हैं आज जो ये पूरे दिल से विश्वास से बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आज के समय में काफी है? Do you know that what issues of life people are going through in our church? क्या आप जानते हैं कि किस तरीके की स्थितियों से होकर गुजर रहे हैं कलीसिया के हमारे कुछ लोग? Many people are going through debt that they don't have money to pay rent. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इतनी उधारी हो गई है इस समय कि वो अपना महीने का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं घर का. There are people, there's Puneet and Kanchan. I was shocked when I heard their testimony. मैं बिल्कुल अचंभित हो गया जब मैंने ब्रदर पुनीत और सिस्टर कंचन की गवाही सुनी एक स्थिति के बारे में. You will not believe they were sleeping, and while they were sleeping, somebody cut the jali of the steel door, opened their house door, entered the house while they were sleeping, and they opened every cupboard of their house, stole their cell phones while they were sleeping, had 4 bananas and left. Can you believe that? कंचन और पुनीत के घर में ऐसा कुछ एक हुआ कुछ दिन पहले कि वो रात को सो रहे थे. उस समय एक चोर आया, उसने उनके दरवाजे को खोला जाली काट कर, आकर उनके कुछ सेल फोन ले गया और 4 उनके केले भी खाकर चला गया. but that is how God is leading us and guiding us. इस प्रकार खुदा हमारी सुरक्षा कर रहा है. Amen. Anything could have happened. कुछ भी हो सकता था. What if they woke up and he hit him on the head? What would he do? ऐसा हो सकता था कि उनमें से कोई एक रात को उस समय उठ जाता जब उस समय चोर आया था और वो चोर उनको शायद एक घातक रूप से उनको चोट दे सकता था. But the problem is that we are never happy. पर मुश्किल ये है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हम कैसी भी स्थिति में हो, अच्छी बुरी, हम पूरी तरीके से कभी आनंदित या खुश नहीं रहते हैं. We are never satisfied. हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि अब मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, भरपूरी से. Because in our mind, sustenance is not equal to blessing. क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर उसमें हमारी सब जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसमें क्या आशीष है? Am I right? If we don't get something extraordinary, it's not a blessing. ऐसे लगता है हमको, हमने अपने आप को ऐसे धोखा दे दिया है कि अगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जरूरत पूरी हो रही है तो उसमें क्या बड़ी बात है? उससे बढ़कर कुछ होना चाहिए, वही आशीष है. But imagine Kanchan and their poor and their wife and their child. Imagine, I was just imagining, what if those people would have done something to poor Ahan? तो आप ये मैं सोच कर मुझे घबराहट हो रही है कि क्या अगर आहान को, उनके बेटे आहान को अगर वो चोर कुछ कर देता तो क्या होता? We need to thank the Lord every day of our lives. और हमें हर दिन के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की और हमको चलाया, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है. I'm going to give you 10 seconds to thank the Lord in your life right now. Hallelujah. मैं आपको 10 सेकंड दूंगा कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए. Thank the Lord for 10 seconds, church. Tell him how much you are grateful about him, that he is in your life. You have come here to church. Something could have happened. Something could have gone wrong. But thank the Lord that he has sustained you till today. Hallelujah. सिर्फ बड़ी-बड़े आशीषों के लिए नहीं कि आपको परमेश्वर आपका खुदा है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद कीजिए, इसलिए उसको धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको सुरक्षा से यहाँ लेकर आया. Hallelujah. Hallelujah. God is good. खुदा बहुत भला है. We want to acknowledge our dear friends who've come from Ghana. We're praying for you that God will richly heal the problems that you're facing in your life, the medical issues, and whatever it is that you're going through. We speak God's healing over your life, and we will continue to pray for you as well. Can I say this? Today I would like to talk about something which we all struggle in our faith life. आज मैं आपसे इस बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, एक ऐसी मुश्किल के बारे में जो हम हर एक मसीह अपने आत्मिक जीवन में उस मुश्किल से होकर गुजरता है. When we think about the place called Canaan, जब हम कना देश के बारे में सोचते हैं, what is that place? ये क्या है ये कना देश? Is it heaven? क्या ये स्वर्ग है? The children of Israel were taken out of Egypt, out of captivity, and Jesus said that I will take you to a land
filled with milk and honey. जब यहोवा ने इज़राइल के लोगों को बंदिश से बाहर निकाला मिस्र से, तो ये कहा कि मैं तुम्हें एक वादे के एक स्थान पर लेकर जाऊंगा. And today I want to propose to you that Canaan is not heaven. तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वचन में कहा जाता है कि कना देश हमारे वादा पूरा होने का देश, वो स्वर्ग नहीं है. ये मत सोचिए कि जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा वो मेरा वादे पूरा होने वाला देश है. But it is a place where God wants to take you, because that is the land where He has promised you. It is a place in your life where He wants to tell you that that is God's blessing in your life, the fullest potential that God wants to take you in every person's life. पर कना देश ऐसा एक स्थान है जहाँ पर परमेश्वर आपको अपने जीवन में लेकर जाना चाहता है, जहां पर परमेश्वर आपको ये बता सके कि वहां पर आपका आशीष है. So today I want to begin today's sermon by saying that many of us, we have the same cycle that the children of Israel had. अगर आप अभी वचन में जाकर देखेंगे कि जो इज़राइल के लोग थे, जिस तरीके से वो एक गोल गोल घूम रहे थे, किसी एक दिशा में नहीं जा रहे थे, हम भी अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं. The children of Israel were delivered from the land of Egypt. इज़राइल के जो लोग थे उनको मिस्र देश से छुटकारा मिल गया. And God said, I'm going to take you to your land of promise, or in other words, the destiny of each one of your life. और यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हें वायदे के स्थान पर लेकर जाऊंगा, और शब्द में अगर कहा जाए तो तुम्हारी नियति की ओर लेकर जाऊंगा. But He took you from your deliverance to your destiny, but in between that there was a desert. अब ये भूल जाते हैं मसीह होने के नाते कि छुटकारा होने के बाद अगर हमें अपने वायदे के देश में पहुंचना है तो बीच में आपको एक मरुभूमि भी मिलेगी, यानी कि एक ऐसा रास्ता आपको उस रास्ते से होके जाना पड़ेगा जहां पर उतार चढ़ाव आएंगे, जहां आपको कमी घटी होगी. So God wants to take you from your place of deliverance. तो परमेश्वर आपको आपके छुटकारे की जगह से ले जाना चाहता है. He wants you to take you to the land of your promise or your potential or your destiny. और आपकी नियति जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए सोच रखा है वहां तक ले जाना चाहता है. And we go through the desert for development. पर हम ये भूल जाते हैं कि उसके बीच में जो हम रास्ता नापते हैं वो है मरुभूमि, जहां परमेश्वर हमारी प्रगति करता है एक आत्मिक रूप से. God wants to develop you. How does He do that? He does that by testing you. अब परमेश्वर आपकी प्रगति कैसे करता है? आपकी परीक्षा लेकर. So today I want you to know that God wants to make you reach your destiny or your purpose or the vision of your life, whatever it is that you want to call it. और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर चाहता है अपने पूरे दिल से कि वो आपको आपकी नियति तक, आपके गंतव्य तक लेकर जाए. But today you may be in the desert. पर आज अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आप अपने आत्मिक जीवन में मरुभूमि में हैं. And today I want you to know that the biggest hindrance for you to reach your destiny is what? और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने गंतव्य तक पहुँचना है तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? It is your attitude of living in yesterday. वो ये है कि आप अपनी सोच में अभी भी अपने भूतकाल में ही रह रहे हैं. Today I want you to know that the biggest deterrent for God to not being able to take you to your destiny is because today as well you are living in yesterday. क्योंकि आज भी परमेश्वर ने आपका छुटकारा तो दे दिया है, आपको मिस्र देश से निकाल तो लिया है, पर अपने दिमाग में, अपनी सोच में आप अभी भी अपने भूतकाल में रह रहे हैं, और इसी वजह से परमेश्वर आपको आपके कनान देश तक नहीं ले जा सकता. Let me explain that through a story in Numbers chapter 14. गिनती की किताब के 14वें अध्याय में एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. I want you to take it out in your Bibles and your whatever devices you have. We're going to read together. I don't want you to miss this. And here we go. Then all the congregation raised a loud cry, and the people wept at night. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, would that we have died in the land of Egypt, or we would have died in the wilderness. Why is the Lord bringing us into this land and fall by the sword? Our wives, our little ones will become prey. Would it not have been better for us to go back to Egypt? Verse 4 says,
and they said to one another, let us choose a leader and go back to Egypt. तो इस वचन में ये वचन हमें ये बताता है गिनतियों की किताब में कि इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र से छुटकारा पाने के बाद कुड़कुड़ाते रहे और आखिरी में कुड़कुड़ाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमें एक नया अगवा ढूंढना चाहिए जो हमें मिस्र देश यानी कि हमारे भूतकाल में यानी हमारे कल की स्थिति में हमें दोबारा ले जाए. Today I want to tell you something in the very beginning. आज मैं आपको इस प्रचार की शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ. Do you know how you're still living in bondage? कि आपको कैसे पता, अगर आपको जांचना है अपने आप को कि मैं अभी भी बंधन में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, वो कैसे आपको पता चलेगा? Every person I believe in this church at some point has been delivered and come from a place of darkness into the light of Jesus Christ. ये मेरा मानना है कि हर एक मसीह यहाँ पर जो आज बैठा है इस कलीसिया में, वो एक समय में अंधकार में था अपने जीवन में और किसी ना किसी रूप में उसको छुटकारा दिया है परमेश्वर ने. And you are like the children of Israel, which is heading towards the promised land that you are supposed to go, which is the purpose and the destiny that God has in store for you. और इज़राइल के लोगों की तरह ही आप अपने मिस्र से बाहर निकल कर अब आप पूरे जोर से आगे निकल जा रहे हैं ताकि आप अपने कना देश में पहुंच सकें. But do you know that like the Israelites, many Christians are delivered by Jesus Christ, but they are still slaves. पर ये बहुत दुख की बात है कि बहुत मसीह हैं अभी भी कलीसिया में आज के समय में जिनको छुटकारा तो मिल गया है पर वो अभी भी बंधुए की तरह ही अपने जीवन को जी रहे हैं. Do you know deliverance is not equal to freedom? क्या आप जानते हैं कि छुटकारे का मतलब ये नहीं है कि अब आप यीशु मसीह ने जो आपको स्वतंत्रता दी है उसका भी अनुभव करने लग जाएं. छुटकारा पा लिया होगा आपने मगर अभी भी आप आजाद नहीं हैं. You might have gotten delivered because of what Jesus has done for you, but it's not necessary that you're still walking, or you have started to walk in the freedom that God has released over your life. Many of you have been delivered from Egypt, but you are still slaves. आप अपने मिस्र देश से तो निकल गए हैं पर आप अभी भी बंधुआ मजदूर हैं शैतान के लिए. You know why you know that? आपको कैसे पता चलेगा? जांच Because के. like the children of Israel, क्योंकि जैसे कि इस्राएल के जो लोग थे छुटकारा पाने के बावजूद there is always a thought in your mind. आपके दिमाग में हमेशा ये एक सोच रहती है. What is that thought? क्या है वो सोच? I want to go back. अरे मुझे कल मेरा बेहतर था, इससे अच्छा तो मैं ये उस स्थिति में मेरी ज्यादा अच्छा था. I want to go back to where I was. मैं जहाँ पहले जिस स्थिति में थी पुराने ऑफिस में जहाँ जॉब कर रही थी वही अच्छी थी. I want to tell you right now, write this down. If your yesterday is better than your tomorrow, you are a slave. अगर आपकी ये सोच है कि आपका बीता हुआ कल यानी कि भूतकाल आपकी नजर में आपके आने वाले समय से बेहतर है तो आप अभी भी बंधुआ मजदूर हैं. If you are a kind of person who is sitting here and saying that, oh, maybe I should have married somebody else. Oh, maybe I should have worked somewhere else. Oh, I should have probably studied something else. Oh, why am I having a child like this? अगर मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? अरे मेरी पत्नी ऐसी क्यों है? मेरा पति ऐसा क्यों है? मेरी नौकरी ऐसी क्यों है? मेरा कलीसिया ऐसा क्यों है? इतना अंधकार क्यों हो रहा है? ये रंजीत क्यों प्रचार कर रहा है? कोई और प्रचार कर रहा है? If that is the way you think, I want to tell you right now, you are a slave. तो अगर आपकी ये सोच है कि मेरी पहले वाली जॉब ज़्यादा अच्छी थी, मेरी बीवी अच्छी थी, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, अगर आपकी ये सोच है, पूरे समय आप अपनी सोच में कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने भूतकाल को मांगते रहते हैं वापस, तो आप अभी भी बंधे हुए हैं. Many of you have been delivered, but many of you are not truly free, my friend. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप शायद अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा चुके हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आत्मिक जीवन में स्वतंत्रता से चल रहे हैं. Freedom, true freedom comes when you let Jesus lead your life, and whatever you are going through in your life, you says yes and amen to that. Hallelujah. स्वतंत्रता का ये मतलब है कि आप किसी भी स्थिति में हो अपने जीवन में, चाहे अंधकार में या फिर चोटी में या फिर एक खाई में, आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह आपका अगुवा है और आप उसको अपनी अगुवाई करने दे रहे हैं. Today I want to pray today that God will release many people who have been delivered and bought by a price by Jesus Christ, but still living in slavery because the only thing that is enveloping their mind is about yesterday. आज मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि आपका परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा अगर आप छुटकारा पा चुके हैं फिर भी स्वतंत्रता में नहीं चल रहे हैं.
Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you a few things मैं आपको कुछ केंद्र बिंदु बताना चाहता हूँ, how you will know whether you are a slave to yesterday. जिससे आप जांच कर अपने आप को ये जान सके कि क्या आप अभी भी अपने भूतकाल से बंधे हुए हैं। Amen. आमेन। The first thing, पहला केंद्र बिंदु, the people who live in yesterday, जो लोग अभी भी अपने भूतकाल से चिपके हुए हैं, बिल्कुल the whole world revolves around their perspective only. जो पूरा ये संसार है वो उनके नजरिए से ही चलना चाहिए। Did you understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं कि The मैं क्या कह people रहा हूँ? who live in yesterday, जो अपने भूतकाल में ही रह रहे हैं, अपने मानसिक और अपने आत्मिक रूप से, the only thing that matters to them is their perspective about a situation. उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी और व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। अगर उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए। Look at the progression here. आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। Has God done? He did 10 plagues in the land of Egypt, and that was the biggest mass exodus of people that the history of the world has seen ever in their life. क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आज तक की सबसे बड़ी महामारी की थी मिस्र के ऊपर, And सबसे बड़ी, it was able to take out the largest number of people from Egypt and go towards the promised land. और उस महामारी के कारण मिस्र से लोग निकल सके इजराइल के, और वो अपने कनान देश की ओर जा सके। He parted the Red Sea. उसने लाल समुद्र को यीशु मसीह ने खोल दिया। He brought water come out of a rock. उसने एक पत्थर से पानी को निकाला। He made cornflakes come from heaven. उसने कॉर्नफ्लेक्स आया आसमान से, Chicken from heaven. चिकन भी आया आसमान से, But still, पर फिर भी what was their perspective? ये इजराइल के जो इजराइल के लोग थे, जो मरुभूमि में थे, उनकी क्या सोच थी? It is better to go back to Egypt. कि ये अच्छा है कि अगर हम इससे अच्छा था कि हम मिस्र के देश में ही My थे। dear friends, like I said right now, we need to start thanking the Lord for what He has done in our life today. पर आज मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुरानी बातों को छोड़िए और अपनी आत्मिक आंखों को खोल के जांचिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू You need to कीजिए। ask yourself this very question today. ये आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है The Israelites saw a giant in the name of Goliath. कि जो इजराइल के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जो वो दानव था, वो गुलायत है, उस पे अपनी नजर टिका दी थी। But a small shepherd boy said, "Who is that uncircumcised guy who is talking against my Lord?" पर ये छोटा सा एक जो भेड़े चराने वाला लड़का था, उसने ये कहा कि ये कौन है तुच्चा सा आदमी जो मेरे परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। Moses sent 12 spies to the land of Canaan. मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश में ये जांचने के लिए कि क्या वहां पर क्या है। 10 of them said that we cannot do. We feel like grasshoppers in front of those giants. उसमें से 10 लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा। But 2 guys, Joshua and Caleb, says, "Give me and we will get this land in Jesus' पर यीशु name." और कालिब ने ये कहा कि हम इस देश को जीत सकते हैं। You want to know what? If you're living in yesterday, आप जानना चाहते हैं कि आप कल अपने भूतकाल में जी रहे हैं कि नहीं? let me talk to your husband or your wife or your family member and I'll tell you whether you live in yesterday. मैं आपके पति पत्नी से थोड़ा अलग में बात करूंगा निजी रूप से, और मैं जान जाऊंगा कि आप अपने कल में रह रहे हैं कि I'll नहीं। just tell them once you leave the church, what is the conversations we were having? मैं अगर ये सुन लूं कि आपकी कलीसिया से निकलने के बाद आपके बीच में क्या बातचीत चलती है, मैं भांप लूंगा कि आप में से कौन भूतकाल में जी रहा है। बहुत बढ़िया सरमन था, बहुत बढ़िया सरमन वेरी था। गुड प्रीचिंग टुडे। अब देखते हैं कल क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स सी टुमारो इफ गॉड वर्क्स इन माय लाइफ और नॉट। सर्मन वाज गुड, बढ़िया सरमन था, वेरी गुड सर्मन। खुद की तारीफ है। मगर तेरे चिकन करी में कभी नमक सही कभी होगा ही नहीं। बट यू नो व्हाट, यू कैन नेवर गिव योर एग्जांपल्स नो ऑफ बीइंग मैं खाना बनाता हूँ वैसे, मेरा चिकन always करी। gives examples of me being mean, but देखते हैं कि let's see if you food you're going to make, how it's going to taste। Are you understanding what I'm saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा If you हूँ? are a guy who lives in yesterday, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी कल अपने भूतकाल में रह रहे हैं, your perspective is always going to be like that. आपकी जो सोच है वो हमेशा आप अपने मन में हमेशा कुड़कुड़ा रहे होंगे किसी बात को लेके।
Husbands are telling their wives, तुम उनके तरह क्यों नहीं कपड़े पहनती? पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि husbands are telling their wives that why don't you dress up like that woman or that girl. पत्नियां बोल रहे तुम उसके तरह हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाते? Women, wives are saying why do you cut your hair like Because that man? we're not happy with what we have. क्योंकि हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने रखा है हम उससे खुश नहीं हैं और उसको आशीष के रूप में नहीं देखते हैं. Please don't take this. I want my wife to look pretty. I know you want your husband to have a good hairstyle, but don't do it with the wrong agenda or the wrong perspective. Don't मुझे आप गलत मत समझिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बीवी को अच्छा तैयार नहीं होना है, आपके पति को अच्छा नहीं लगना है, पर आप अपने मन को जांचिए. आप किस तरीके की सोच को लेकर उन पर ये दबाव डालते हैं. People who live in yesterday don't have a God perspective in their life. जो लोग अपने अभी भूतकाल में रह रहे हैं उनकी जो सोच है वो परमेश्वर के हिसाब से जो धार्मिक है वो नहीं है. Many of us are stuck because we are living in yesterday. हम अभी भी हम अपने जीवन में हर रूप से फंसे हुए हैं क्योंकि हम अपने भूतकाल में जी रहे हैं. We are not able to handle what God has for you, and today I want you to know that God has a plan for you, and if God has delivered you, if God has taken you out from the situation where He has a plan for you to prosper you, today I want to encourage each one of you. I want to tell you that God has a plan for you. Please don't negate, don't nullify what God wants to do in your life by looking back. आज मैं यहाँ खड़े होकर आपकी ताड़ना नहीं करना चाहता, पर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के मन में आपके लिए बहुत योजनाएं हैं. परमेश्वर आपको आपके कनान देश में ले जाना चाहता है, पर आज जो परमेश्वर आपके हाथ में रख रहा है अगर आप उसको धार्मिक रूप से नहीं संभाल पाएंगे तो आप परमेश्वर की योजनाओं को छोड़ देंगे. First thing is, people who live in yesterday have their own perspective about everything. मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग अभी भी अपने भूतकाल में जी रहे हैं उनके हिसाब से उनकी ही सोच सही है और परमेश्वर की सोच को वो ध्यान नहीं देते हैं. And I want to repeat, if your yesterday looks better than your tomorrow, you will always look back. और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को जांचिए. अगर आप अपनी सोच में हमेशा अपने भूतकाल को ज़्यादा मानते हैं कि मेरे भूतकाल में मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा था, आने वाला तो पता नहीं क्या होगा, आप अभी भी अपने भूतकाल में रह रहे हैं. Numbers chapter 11 verse 5. गिनतियों की किताब की 11वां अध्याय. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, and the cucumbers, the melons, the leeks, the onions and the garlic. हम लोग 11वां अध्याय का 5वां वचन, हम लोग मिस्र में खाई गई मछलियों को याद करते हैं. उन मछलियों का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता था. हम लोगों के पास बहुत सी सब्जियां थी जैसे ककड़ी, खरबूज, गन्ना, प्याज और लहसुन. The people who live in yesterday always keep talking about the past. जो मसीह लोग अभी भी अपने भूतकाल में रहते हैं वो उनके वार्तालाप में भी सिर्फ उनका भूतकाल ही सुनाई देता है. I want you to know, church, if you're surrounded by people like that, you need to ask yourself this question to walk away. और आपको आज एक चुनाव करना पड़ेगा कि आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो सिर्फ इसी तरीके से बात करते हैं कि भूतकाल में ये हुआ वो हुआ, तो आपको चुनाव करना है कि वो आपकी संगति होने चाहिए या नहीं. I know so many people who say that, have you seen those people who have a picture of the president in their room because that's the only thing. गलती से जाके उन्होंने सेल्फी ले लिया उसके साथ and वो फोटो वो फ्रेम करके रखते हैं अपने ऑफिस में. आप कुछ लोगों के अपने ऑफिस में अगर आप जाके देखें कार्यालय में तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ उन्होंने एक फोटो ली होती है तो वो लगा रखी है. नहीं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं. Have you seen these people? They'll take pictures with all these celebrities and they'll put it on their thing. Why? Because they want to show that there's somebody, because they took a picture with the president of India of 1987. तो 1987 के प्रेसिडेंट के साथ हमने फोटो ली है आज से 37 साल पहले, पर अभी भी हम उसी पर ही उछल कूद रहे हैं कि वाह देखा 1987 में मैं राष्ट्रपति से मिला था. Many of us are living in what God did in 2020.
हम अभी भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर ने 2020 में उनके जीवन में किया था, अभी भी उसी के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं और उसी में जी रहे हैं. Still talking about what God did in your life, in the life of your family, in the life of your church, almost 20 years ago. 20 साल पहले परमेश्वर ने मेरी कलीसिया में ये किया, मेरे द्वारा ये किया, मेरे जीवन में ये किया. बस यही बोलते रहते हैं इस तरीके के लोग. The education that they did 5 years ago. 5 साल पहले मैंने ये पढ़ाई करी और मुझे डिग्री मिली. The healing that they were able to do 8 years ago. परमेश्वर ने मुझे 8 साल पहले ये चंगाई दी थी. But I want you to know one thing about God. पर मैं आपको परमेश्वर के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ. God is not a God of yesterday. परमेश्वर कल का जो बीत चुका है उसका परमेश्वर नहीं है. He is a God that is moving on from glory to glory. आमीन. वो एक ऐसा खुदा है जो सिर्फ महिमा से महिमा की ओर बढ़ता है. We are supposed to forget the bad things that have happened in our life yesterday. हमें भूल जाना है कि हमारे कल बीते हुए जीवन में हमारे साथ जो गलत हुआ था उसको हमें पूरी तरीके से भूल जाना है. But today I want to also suggest to you, you also need to forget the good things that has happened in your life. मैं आपको आज एक और सलाह देना चाहता हूँ जो आज से पहले खुदा ने अच्छी चीजें करी हैं आपके जीवन में, आप उसको भूल जाइए. Because I believe that God wants to take you from glory to glory and He's going to do a new thing in your life. Hallelujah. ताकि आप ये समझ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये जान ले कि परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाना चाहता है और खुदा आपके जीवन में एक नया बड़ा काम करने जा रहा है. I'm going to show you 2 quick pictures in the screen right now. मैं आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा इस स्क्रीन में जो पीछे लगा है. The first picture is the picture of our church when I came back from America to start my ministry. ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं ये तब की है जब पास्टर रंजीत अमेरिका से वापस आए थे और अपनी सेवकाई शुरू करी थी. 2015. 2014. That I was showing this picture to our worship team when we had a worship hangout on Saturday. और अभी कुछ दिन पहले हमारी वर्शिप टीम आराधना करने वाली टीम हमारे घर आई थी, तब मैंने उनको ये पिक्चर दिखाई थी. That was it. That was our whole worship team. बस यही थी हमारी वर्शिप टीम और यही थे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स. And then I showed them another picture after that. और मैंने दोबारा उनको एक और पिक्चर दिखाई. Wow. Right? Amen. We're going to be like, oh, thank you, Jesus. तालियां तो बजा. मगर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ. But there's one more thing I want to point out today. I'm not satisfied with this. मैं अभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ. Hallelujah! Did you understand what I said? आपने सोचा होगा अरे इतने छोटे से स्टेज से परमेश्वर ने इतना बड़ा स्टेज दे दिया, इसके लिए हम ताली बजाएंगे. कितनी देर ताली बजाओगा? Because परमेश्वर बोल रहा है इस स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ. रंजीत, क्या उसके लिए तू तैयार है या नहीं? Is what God is asking us. You might be thinking that okay, we moved from this small setup to such a big stage. Let's clap for it. For how long are you going to keep clapping for the same thing? But I am saying, God, you're going to take me from glory to glory. इससे भी बड़े स्टेज पे खुदा हमको लेकर जाएगा और हमारी कलीसिया को और बढ़ाएगा. Hallelujah! I'm not going to live in the past for the wrong things, the bad things that have happened, and I'm not going to hold on to even the good things. Why? Because God is going to do a new thing in my life, a thing that I have never understood, a thing that I cannot comprehend. But all I have to say is, God, I am ready to move forward with you. और मैं ना ही बुरी चीजों पर पकड़ के रखूंगा, ना ही ऐसी चीजों को पकड़ के रखूंगा कि परमेश्वर ने इतना अच्छा किया, उतना बढ़िया किया आज से 2 साल पहले, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे भी अपने साथ लेता जा रहा है और एक नई चीज करेगा जो मैंने कभी सोची नहीं थी. Many of you are stuck in thinking about some good thing that happened to you yesterday. आप बहुत सारे ऐसे मसीह होते हैं जो अभी भी यही सोच में है कि खुदा ने वो अच्छा किया था मेरे साथ, कितना ही बढ़िया नौकरी दिलाई थी 2 साल पहले. एक साल हो गया नया नौकरी मिल गया, परमेश्वर बोल रहा है अगले नौकरी के लिए तैयार हो गया. God, it's already been a year that you have found the new job. God is asking, are you ready to move forward to a job better than this? As a believer, you can never be satisfied. I'm never satisfied. How am I treating my
wife? How am I treating my children? How am I treating my parents? How am I treating my sisters? How am I treating my church believers? I'm never satisfied. दो लोगों ने एक पैर पे पास्टर तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत अच्छा प्रचार. I'm not satisfied. I want to preach more. I want to do more. I want to reach more. I want you to know. आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक मसीह होने के नाते में आप संतुष्ट नहीं रह सकते. आपके रिश्तों में आप संतुष्ट नहीं रह सकते. आपके प्यार करने के दम पे आप संतुष्ट नहीं रह सकते. आपके परमेश्वर की ओर समर्पण में आप संतुष्ट नहीं रह सकते. Because there's something more you can do. You know why? Because God wants to take you to the promised land. परमेश्वर आपको कानान की देश लेके जाना चाहता है. और आप शायद आज मरुभूमि में होंगे. You may be in the desert, in development, in testing, but I am telling you something. The God that brought you out of Egypt will take you to Canaan. Hallelujah. वो यीशु मसीह जो आपको मरुभूमि से निकाल के लेकर आया, जिसने 10 चिन्ह और चमत्कार किए, वो आपको मरुभूमि में छोड़ने के लिए नहीं, मगर वायदे के देश में लेके जाने के लिए वो काबिल है. हालेलुया. Amen. Hallelujah. He is able to do that. Forget about what happened yesterday. भूल जाइए कल क्या हुआ था, अच्छा या बुरा. You know the biggest harm क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो चोट पहुंचती है या of बुरा people, होता है, of people living in yesterday? अगर आप अपने भूतकाल में रह रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा घाटा क्या है? Two things. दो चीजें होती हैं आपके साथ. You take the future generations also get stuck because of you. आपके इस सोच की वजह से आप आने वाली पीढ़ियों को भी रोक लेते हैं भूतकाल में. I hope you understand what I'm saying, church. मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि गहराई, इस बात की गहराई को. Because you live in yesterday. क्योंकि आप अपने भूतकाल में आपने जीने का चुनाव किया है. Your children will also never move forward because their blessing is connected to your attitude and the way you see God. और इसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि उनके जीवन में जो आशीष आएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के साथ आप किस प्रकार चल रहे थे. Numbers chapter 14 verse 22 says like this. गिनती की किताब का 14वां अध्याय का 22वां वचन ये कहता है, Not one of those who saw my glory and signs I performed in Egypt. Numbers 14:22. And the wilderness but disobeyed me and tested me 10 times. Not one of them will ever see the land I promised on the oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. Today I want to let you know, if you keep on murmuring against God about yesterday, आज मैं आपको एक साफ आपके सामने एक बात साफ कर देता हूं कि अगर आप लगातार परमेश्वर के सामने बस कुड़कुड़ाते ही रहेंगे, you will die in the desert. आप मरुभूमि में ही मर जाएंगे. आप अपने कनान देश में कभी नहीं पहुंच पाएंगे. If you keep murmuring enough, if you keep on mumbling about how you don't like your family, how do you don't like this, how you don't like that, how you don't like your job, how you don't like, God will say, you stay there. You don't need to move forward anymore. I'm done with you. अगर आप कुड़कुड़ाते रहेंगे अपने जीवन में, मुझे मेरे परिवार से मुश्किल है, मुझे ये लोग पसंद नहीं, मुझे अपना काम पसंद नहीं है, तो आप एक समय पे आपका कुड़कुड़ाना इतना हद पार कर देगा कि खुदा कहेगा तुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, तू जहां है तू वहीं रहे. You know what happened? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? Because the people murmured, God said, I'm going to kill them. क्योंकि लोगों की कुड़कुड़ाहट इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर ने कहा कि अब उनको मैं उनके प्राण को ले लूंगा. But because Moses and Aaron went and cried before the presence of God, और क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना की, God said, I will not kill them, but I will not take them to the land of my promise. परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और कहा कि मैं इनके प्राणों को नहीं लूंगा, पर
परमेश्वर ने ये कहा कि वो कभी भी वायदे के स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। You know what that means? क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? They lived, वो जिए, but they were just waiting to be buried. वो जी तो रहे थे पर वो सही रूप से जिंदा नहीं थे। वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि हमें कब दफनाया जाएगा। Because God said, I'm not going to take you to the promised land. क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो खुदा ने अपना हाथ, उनका हाथ छोड़ दिया था। I pray that none of us are living our Christian lives like that. और आज मेरी यही प्रार्थना है कि हम में से कोई भी विश्वासी अपने मसीह जीवन को इस प्रकार नहीं जी रहा है। You need to know that God has a plan for you. आप इस बात को समझ जाइए और मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं रखी हैं। I want you to know that if you're living today, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप जिंदा हैं, आपके अंदर प्राण है, it's because God has a plan for you. तो मान लीजिए कि परमेश्वर के दिमाग में आपके लिए एक योजना है। But the question that God is asking you today is, are you going to move forward with God or are you going to keep living in yesterday? पर प्रश्न ये है जो आपसे परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या आप अपने भूतकाल में ही जीते रहेंगे या फिर आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ, अपने अगुवे के साथ आगे बढ़ने के लिए। I'm telling you, I want to conclude by saying, yesterday is a mixture of many things. और आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका बीता हुआ कल में आप बहुत अलग अलग तरीके की चीजें पाएंगे। My yesterday had good things मेरा भूतकाल में अच्छी स्थितियां भी थी and it had very good things. और बहुत बहुत अच्छी स्थितियां भी थी। It had some bad things कुछ बुरी स्थितियों से भी होकर गुजरा हूं मैं भूतकाल में, and it had some very bad things. और ऐसी भी स्थिति थी कि जिसने बस मेरी जान ही निचोड़ ली थी शायद। There was a man called Paul. और पौलुस नाम का एक व्यक्ति होता था। He studied with the most intelligent intellects like Gamaliel. और उसने अपनी जो पढ़ाई की थी वो बहुत ही प्रभावशाली और अनेक गुणों के व्यक्तियों के साथ की थी। His yesterday was an amazing man. He was rich, he was influential, he was educated, he was high in the social circle. उसका जो भूतकाल था वो एक बहुत ही ऊंचे स्तर का व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही प्रभावशाली और काफी पैसे वाला व्यक्ति भी था वो। But this man who was highly influential, highly educated, highly intellectual, his yesterday also had the tag of a murderer inside of him. तो उसके भूतकाल में ये तो अच्छी चीजें थी कि उसके पास बहुत पैसा था, वो प्रभावशाली है, पर एक बुरी चीज भी थी उसके भूतकाल की कि He was a murderer. कि वो एक खूनी था। He used to murder Christians. वो मसीह लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार हो जाते थे उनकी ताड़ना करता था और उनका खून भी कर देता था। He used to not make fun of Christians. वो मसीहियों का सिर्फ मजाक नहीं उड़ाता था, He used to make sure that he killed all of them. वो ये देखता था कि एक एक व्यक्ति जिस यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार है वो उनको जान से मार दे। That was his yesterday. ये उसका कल था। And that person is saying something to me and to you this morning. और वही व्यक्ति जो अपने जीवन में इस पड़ाव से होकर निकला है भूतकाल में अच्छा और बुरा, वो आज हम सबसे एक बात कहना चाहता In है। Philippians chapter 3 verse 13 he's telling you this. फिलिपियों की 3 अध्याय में 13वें वचन ये कहता है, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Listen to me, church. I press on toward the goal to which the prize for which God has called me, my heavenly in Christ Jesus. Amen. हे भाइयों, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, पर बात ये है कि बीती को छोड़कर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूँ। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहूँगा कि मैं अपने उस पारितोषिक को जीत लूँ जिसे मसीह यीशु के पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है।
Somebody like Paul is saying this. ये एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पॉल है, पॉलस, वो कह रहा है, He's saying, I'm forgetting what was there yesterday. वो ये कह रहा है कि मैंने अपने भूतकाल को पूरी तरीके से भुला दिया है And I'm pressing forward in my life. और अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ अपने जीवन में. Maybe many of you had a great time with your family yesterday. हो सकता है कल के समय में आप सब ने बहुत ही अच्छा समय बिताया हो अपने परिवार के साथ. Maybe last month was very good for your business. हो सकता है पिछले महीने आपका व्यापार से बहुत कमाई आई हो. Maybe last month you had an amazing time in your workplace and you got a pay raise. और हो सकता है कि पिछले महीने आपके कार्यालय में आपको आपके वेतन को बढ़ा दिया गया हो. But maybe last month you got laid off from your job. पर पिछले हफ्ते आपको उसी नौकरी से निकाल दिया गया है. Maybe yesterday or last week you had a bad argument with your parents or your wife or your husband. पिछले हफ्ते आपके परिवार में किसी के साथ आपका शायद एक बहुत ही गहरा झगड़ा हो गया हो. Maybe you and your partner in your business decided to break away and you have incurred a lot of loss in your life. और आप जिस व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है कि उसने आपको छोड़ दिया हो क्योंकि बहुत घाटा हो गया आपके व्यापार में. Maybe you lost your job last week. हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो. No matter what it is that you're going through in your life, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन में किस मुश्किल से होकर गुजर रहे हैं. I want to encourage you by saying this. आज आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूँ. We need to forget what is behind and we need to press forward towards our heavenly goal in Christ Jesus. Hallelujah. हमें पिछली अच्छी बुरी सब भुलाकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है. You cannot be satisfied where you are today, church. आज आप जहाँ हैं अपने आत्मिक जीवन में और परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उससे आप खुश नहीं रह सकते. Many people will come to our church and many people will say many good things about our church, but I am not satisfied because we are nothing compared to 2.3 crore people that are living in the city of Delhi. बहुत सारे लोग हैं हमारी कलीसिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं, पर उन पर मैं अपनी सोच को नहीं गड़ाता हूँ, क्योंकि हमारी कलीसिया में आज जितने लोग बैठे हैं ये गिनती कुछ भी नहीं है 200 करोड़ लोगों के सामने जो अभी भी इस भारत देश में हैं और उनको बचाना ज़रूरी है. Today I want you to know 23 lakhs of people in Delhi need Jesus Christ. आज आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ 23 लाख लोग हैं दिल्ली शहर में जिन्हें यीशु मसीह की ज़रूरत है. We are going to press forward. हम आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. Whether you have a job, a good job, we're going to press for greater things. आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप उससे भी ज़्यादा महान कार्य की ओर बढ़ेंगे. You don't have a good job, we're still going to press forward. आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने अगुवे यीशु मसीह के साथ. You're having a good week, we're going to press forward for a better week. आपका अच्छा हफ्ता बीता है तो हम आगे और बढ़ेंगे और भी अच्छा हफ्ता बीतना If you had a चाहिए. bad week, we're going to forget about that and say, God, I'm pressing forward in Jesus' name. पिछले पुराने खराब हफ्ते को भूलकर खुदा को बोलिए, मैं बढ़ रहा हूँ आगे अपने लक्ष्य की ओर परमेश्वर. We are not going to be people who are delivered and still slaves to bondage. हम आज मना कर देते हैं इस बात को कि हम ऐसे व्यक्ति होने को नकार रहे हैं कि हमारा छुटकारा तो हो गया है पर फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हैं. Stop hanging out with the 10 spies who only had negative things to say. उन 10 जासूसों के साथ घूमना छोड़ दीजिए जो सिर्फ खराब बातें ही बोलते हैं लक्ष्य के Stop बारे में. hanging out with the people who only have negative things to say to you. उन लोगों अपनी संगति को बदलिए. Because God is doing a new thing in your life. Because आज से परमेश्वर ने एक नया कार्य शुरू कर दिया My है आपके God will जीवन only में. go from glory to glory. याद रखिए आप सिर्फ महिमा से महिमा की ओर बढ़ेंगे. I want you to know that this is not the end. I want you to know that our church is going to grow and grow and grow and grow. And one day, Radha Swami people will be taking permission from us to hold an event there. You know why? Because I am ready for an amazing thing. Because I serve the Most High God. Because we are going to make a traffic jam on this street. And I'm praying in the name of Jesus that God is going to enable us to bring the metro here so that more people can come here. Because the church is going to be here, because God is going to do a new thing. God is going to make a new road. I want you to believe God for something amazing in your life. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से बड़ी-बड़ी सोच रखिए.
आज मैं बोलना चाहता हूं, अपने पत्नी को देख के बोलिए कि तू जिंदगी, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष है। तू अपने पति को देख के बोलिए, यू आर द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन माय लाइफ। लुक एट योर चिल्ड्रन एंड से दैट दे आर द बेस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। लुक एट योर चर्च एंड से दिस इज माय बेस्ट चर्च। डोंट गो होम एंड बी लाइक, अरे यार मगर हमारे चर्च में ये तो नहीं है, हमारा चर्च तो वो नहीं है, हमारा पास्टर तो थोड़ा काला है, उसका पास्टर तो थोड़ा गोरा है, हमारा पास्टर तो थोड़ा पतला है, उसका तो थोड़ा मोटा है, उसके चर्च में तो थोड़ा और एसी है, उसके चर्च। नो, we are pressing forward with what God has given us. If you're sitting here, God wanted you to be in this church. Amen. You know, you will never ever find me stopping anybody to leave our church. आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे किसी से भी कि अगर कोई हमारी कलीसिया कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर को छोड़ के जा रहा है तो मैंने उसको रोका। Because I believe, I love you as a family. I love you as my brother and my sister, and we all truly mean to do that. And if you cannot see that, मैं उसको बदल नहीं सकता। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं आपसे पूरे दिल से प्रेम करता हूँ और आपको अपना परिवार मानता हूँ। अगर आपका दृष्टिकोण अगर अलग है और आप जाना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। Hallelujah. Hallelujah. I just want to say today, God is wanting to do a new thing in your life today. मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य शुरू करना चाहता है। Amen. Amen. And I'm ready for a new thing. क्या आप एक नए उस परमेश्वर के उस नए कार्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं? Are you ready for a new thing in your family? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में एक नया कार्य शुरू Are you करे? ready for a new thing in your job? आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी में आप तैयार हैं परमेश्वर नया Are you कार्य ready शुरू for a करे? new thing in your church? आपकी कलीसिया में परमेश्वर एक नया कार्य शुरू करे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? God is going to do that. परमेश्वर वो करेगा आपके लिए। God is going to do that. परमेश्वर करेगा आपके लिए। Today I want you to make a commitment. If there's anybody who's saying, I don't want to live in yesterday, I want you to stand up. अगर आप यहाँ बोलना अगर आज चाहते ऐसा हैं, कोई भी व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार करना चाहता है कि मैं अपने भूतकाल में अब नहीं जीना चाहता, I'm going to live for my tomorrow because I know Jesus, He holds my tomorrow. तो आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को कहिए कि खुदा मैं अपने आने वाले भविष्य पर नजर को गड़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds my future. And life is worth a living just because He lives. परमेश्वर, हम कल में नहीं रहेंगे, हम आने वाले कल में रहेंगे। परमेश्वर, the word of God says, those who are in Christ are a new creation. The old has gone and the new has come. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में जो भी है वो एक नई रचना है। उसका अतीत आत्मिक स्थिति, उसकी अतीत मानसिक स्थिति वो जा चुकी है, वो अतीत में है और नई स्थिति आ गई है। I'm going to live in the tomorrow that you have for me, Jesus. परमेश्वर, अब मैं उसकी ओर बढ़ूंगा जो तूने मेरे लिए भविष्य में रखा है। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां उसके आने, तब तक विश्वास योग्य रहेंगे। देखे, क्योंकि हमारे
जिंदगी का मकसद क्या है? हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखें मेरा यीशु रहता। परमेश्वर हमको, I want all of you to say, I receive. परमेश्वर आपके हाँ, आपके कल के लिए मैं हाँ बोलता हूँ. Amen. Whether it be good, bad or ugly, I want you to know that God has a plan to prosper you, to give you a future and a hope. आप अपना अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. आज कितने लोग बोलना चाहते हैं, आने वाले कल को मैं परमेश्वर तेरे चरणों में मैं सौंपता हूँ. Hallelujah. How many of you can say, the coming tomorrow, I am going to surrender at the feet of Jesus Christ. Hallelujah.